हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश फॉर द ईयर 2025। सो मार्च 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए पेपर पैटर्न क्या है। दिस इज़ द न्यू पेपर पैटर्न for 2024 and 2025 onwards. So time is 3 hours and maximum marks is 80 marks. ठीक है. And section A में answer any two of the following questions in about 100 words each. So ये फर्स्ट बिट में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रोज लेसन से। सो 4 प्रोज लेसन है एज आई टोल यू इन द सिलेबस। अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आउट ऑफ 4 एनी 3 लेसन्स आर गोइंग टू कम फॉर योर एग्जाम्स। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। ट्रैवल इज एन एक्सेलेंट एजुकेटर, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रसल्स एसे हाउ टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस। क्वेश्चन इटसेल्फ से समझ में आ रहा है कि फर्स्ट प्रोज लेसन से है, दैट इज हाउ टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस। Second one, how did APJ Kalam encourage Dr. Vasudevan and what has been the outcome? So this is taken from Solution to Plastic Pollution, prose lesson. Third one, sketch the character of Jim in the light of Marianne's comments like it is the same. How did it get into Jim's pocket? So this is taken from Guilty, one act play. This is a prose lesson. So as you can see in first bit, only 3 questions. Each question carries 4 marks, total of 8 marks. Any 2 you need to answer. Bit number 2, answer any 2 of the following questions in about 100 words each. So any 2 you need to answer out of 3. So these are questions from your poems, okay, from your poetry. Each question carries 4 marks. So total of 8 marks. First one, what is the theme of the poem On the Grasshopper and Cricket? So this is taken from On the Grasshopper and Cricket poem. Second one, according to Keats, when does one hear a cricket song? So this is again taken from On the Grasshopper and Cricket. Third one, what does the line the river needs to take the risk of entering the ocean mean? Discuss. So this is taken from the poem Fear. Question number 3, answer any 2 of the following questions in about 100 words each. So again each question carries 4 marks, total of 8 marks. Any 2 you need to answer. So these are questions from short stories. First one, what did Satish's mother advise him about strangers? How did Arun and Satish react to her advice? So this is taken from the woman on platform number 8. It's a short story. Then, love, sacrifice and generosity are the essential elements for happy living. Explain the statement with reference to the story, A Gift for Christmas. So this is taken from A Gift for Christmas short story. Third one, the narrator thought that his interview was superfluous. Why? So this is taken from the short story and interview. Section B. Section B contains reading comprehension passages, that is seen passage from short stories and unseen passage just like that from anywhere. Okay. So those are again given, the unseen ones are also given in your reader. You can check out. Okay, bit number 4. Read the following passage carefully and answer any 4 questions given after it in a word or a sentence each. So as you can see, it carries 4 marks because 4 questions are there. So here is a passage from the Doctor's Word short story. In his busy round of work, Dr. Raman had not noticed that Gopal had not called in for over 3 months now. He just remembered it when he saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall one crowded morning. Dr. Raman could not talk to him for over an hour. When he got up and was about to pass on to the operation room, he called up the young man and asked, "What brings you here, sir?" The youth was nervous and shy. "Mother sent me here. What can I do for you? Father is ill." Question number 1. What was that Dr. Raman had not noticed? So answer is that Dr. Raman had not noticed that Gopal had not called in for over 3 months now. Question number 2. How did Dr. Raman remember what he had not noticed earlier? So answer is he remembered it when he saw Gopal's son in his hospital. Third one, what kind of young man was Gopal's son? Answer is nervous and shy because these are the 2 things which have been mentioned. Question number 4, what was the problem that made Gopal's son visit Dr. Raman? Answer is Gopal's illness. Next, write the phrase from the passage that shows Dr. Raman was always busy. Phrase means a group of words. So busy round of work. Okay, it shows us that he was busy. So answer is busy round of work. Next, write the part of speech of the word round in busy round of work. Part of speech. What is round? Round is a noun. Okay. Read the following passage carefully and answer any 4 questions given after it in a word or a sentence each. So ये एक unseen passage है जिसको आप पढ़ोगे and then you have to answer 4 questions and you will get 4 marks. Okay. So let's see. When Dr. Kalam was the president, he visited Field Marshal Sam Manekshaw, who was ailing in the military hospital Cooner. He inquired about Sam's health and asked before leaving whether he had any grievance. Sam replied that his only grievance was he wasn't able to stand up and salute his most respected president. Kalam held Sam's hands as both were in tears. Actually, Sam didn't tell Kalam that he had not been paid the pension of the field marshal's rank till then for nearly 20 years. However, Kalam
came to know about it and passed the pension with arrears within a week and sent the check of nearly 1.25 crore to Sam through the defense secretary by a special plane. That is the greatness of APJ. But then Sam received the check and promptly donated it to the Army Relief Fund. Who will you salute now? बेसिकली इसमें होता यह है कि डॉक्टर APJ कलाम जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं एंड वो फील्ड मार्शल को विजिट करते हैं. एक आदमी है सैम कहकर, सो वो मिलिट्री में काम करता है एंड वो अब मिलिट्री हॉस्पिटल में है पूनर में. एंड वो सैम की हेल्थ चेकआउट करने के लिए आते हैं एंड जाने से पहले वो सैम से पूछते हैं कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है. तो सैम जो है वो यही कहते हैं कि मेरी बस एक ही तकलीफ़ है कि मैं उठकर सल्यूट नहीं कर सकता उस इंसान को जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. डॉक्टर कलाम जो है सैम के दोनों हाथ पकड़ते हैं एंड दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं. और सैम ने डॉक्टर कलाम को ये नहीं बताया था कि सैम को फील्ड मार्शल का जो रैंक मिला था उसके लिए पिछले 20 साल से पेंशन नहीं मिली है. तो डॉक्टर कलाम जो है उन्हें पता चलता है इसके बारे में. उसके बाद में वो पेंशन पास आउट करते हैं. जितने भी अरियर्स थे सैम के, अरियर्स यानी कि पहले जो पैसे सैम के थे और उसे नहीं दिए गए, वो उस तक पहुंचाने के लिए विद इन वीक्स ही हैज़ पास द पेंशन एंड सेंट द चेक. उन्हें चेक भेज दिया 1.25 करोड़ का सैम को एक डिफेंस सेक्रेटरी के ज़रिए, एक स्पेशल प्लेन के ज़रिए. वो भी तो इतने ग्रेट थे APJ कलाम. फिर जब सैम मानेकशॉ को वो चेक मिला तो उन्होंने उसे डोनेट कर दिया आर्मी के रिलीफ फंड में. तो एंड में ये पैसेज पूछता है कि आप किसको सल्यूट करोगे. अब ऑब्वियसली बोथ द ग्रेट पर्सनैलिटीज बिकॉज वो अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, राइट. व्हाट डिड कलाम आस्क सैम बिफोर लीविंग? आंसर इज वेदर ही हैड एनी ग्रीवियंस. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज सैम्स रिप्लाई? आंसर इज दैट ही wasn't able to stand up and salute his most respected president. नेक्स्ट, was Sam still in service at that time? क्या वो जब भी काम कर रहा था? नहीं. आंसर इज no. नेक्स्ट, find the word from the passage that means money that is owned and should have been paid earlier. ये वर्ड मैंने आपको अभी समझाया है. आंसर इज अरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट ऑफ APJ proves his greatness? So answer is sanctioning the long pending arrears and sending that check through a special person by a special plane, right? Next, the passage conveys the message that we should salute only one of the great personalities mentioned in the passage. Say true or false. So answer is false. हमें हर उस शख्स को सल्यूट करना चाहिए जो कि हमारे भारत के लिए कुछ करता है या फिर कोई अच्छा काम करता है, right? Bit number 6, study the advertisement given below and answer any 4 questions given after it. तो यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उसे आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बारे में पढ़ना है एंड देन 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. सो दिस एडवर्टाइजमेंट इज अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड. तो इसके स्पेशल फीचर्स ये है कि 7.6% आपको इंटरेस्ट मिल सकता है एंड टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80C है एंड ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने स्टार्ट किया है. तो बेसिकली आप सुकन्या समृद्धि योजना में एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे या फिर आप वेबसाइट पर भी जाकर स्टार्ट कर सकते हो एंड इसकी गाइडलाइंस नीचे दिए हुए हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. टिल 10 years ऑफ गर्ल चाइल्ड, मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट 250 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 1.5 lakhs per year. सी स्पेलिंग ऑफ lakhs is also wrong here. Next, no limit in number of deposits in a year. Maturity after 21 years of age. Account can be closed after marriage of girl child. Partial withdrawal up to 50% is allowed after 18 years of एज. सो हमने एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लिया है. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट इज बीइंग प्रोमोटेड थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट? सो आंसर इज सेविंग्स फॉर गर्ल चाइल्ड्स फ्यूचर, है ना. नेक्स्ट, व्हाई हैज द प्रोग्राम बीन लॉन्च्ड? आंसर इज फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ गर्ल चाइल्ड. नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट ऑफ SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना. तो मिनिमम अमाउंट कितना है? 250 रुपये, 250 रुपीज़, जैसा कि हमने एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा था. नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर SSY? अभी पढ़ा था हमने 7.6% पर ईयर. नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिपॉजिट्स कैन मेक इन अ ईयर. नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, कितने डिपॉजिट्स हम कर सकते हो? अनलिमिटेड डिपॉजिट्स कर सकते हैं. नेक्स्ट, पार्शियल विड्रॉल अप टू 50% इज अलाउड आफ्टर 18 years ऑफ एज. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो क्या आप आधे पैसों को निकाल सकते हो जैसे ही बच्ची जो है 18 साल की हो जाती है? तो इसका आंसर है हाँ. तो आंसर इज ट्रू. बिट नंबर 7, रीड द बार ग्राफ बिलो एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस गिवन आफ्टर इट. सो आपको जैसा अपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है उसी तरह आपको बार ग्राफ भी पढ़ना है एंड देन 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है जिसके आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. सो हियर इज फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स. सो सोशल स्टडीज़ है 30, 50 मैथ्स 30, साइंस एंड देन इंग्लिश इज समवेयर इन बिटवीन 30 to 40 एंड देन यू हैव अदर्स. सो अगर आप देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये 0 to 60 एंड सब्जेक्ट्स आर सोशल स्टडीज़, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, अदर्स. ओके, लेट अस सी द क्वेश्चंस नाउ. What does the bar graph present? Answer is favorite subjects of students. Next, how many subjects are shown in the bar graph? Answer is 5. Third question, which subject is the most popular? So most popular subject, जैसा कि आपने देखा कि वोट सबसे ज़्यादा मैथ्स को आए हैं, so maths is the most popular subject. Then which subject
इज़ फेवरेट वन फॉर 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स को कौन सा सब पसंद है? सोशल स्टडीज़ पसंद है। एंड लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में 50 दिया गया था, अभी 30 स्टूडेंट्स पूछा है तो आंसर सोशल स्टडीज़ ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट इज़ लेस पॉपुलर, साइंस और इंग्लिश? सो साइंस इज़ लेस पॉपुलर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक सोशल स्टडीज़ इज़ डैश। सोशल स्टडीज़ कितने बच्चों को पसंद है? 30 बच्चों को। सेक्शन सी बेसिकली ग्रामर होता है। सो आपको हमेशा जब जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखो तो सेक्शन नंबर और सीरियल नंबर प्रॉपर्ली डालना होता है, यानी कि बिट नंबर। So 8th one, rewrite the following passage or sentences using 8 of the punctuation marks wherever necessary. Punctuation marks जैसे कि comma, full stop, capital letters, these are basics, okay, inverted commas. So ये सब जहाँ जहाँ necessary है आप उसको add up करोगे, both A and B दोनों करना है आपको इसमें, okay. Then आपको 4 marks मिलेंगे because हर punctuation mark के लिए आपको half mark मिलेगा। Important punctuation marks add up करके बताती हूँ। Okay, so as you can see, फर्स्ट लेटर आफ्टर ए कैपिटल होगा, देन डिकेड्स में अपॉस्ट्रोफी लगेगा, देन एफर्ट्स के बाद में कॉमा आएगा, देन ले रूट्स के बाद में एक कॉमा है, देन TCE के बाद में एक कॉमा है, एंड इन्वेंशन के बीच में आप चाहो तो हाइफन ऐड कर सकते हो, एंड TCE के बाद में कॉमा है, एंड देन सेंटर का C कैपिटल होना चाहिए, एंड देन फुल स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट वन में सुमित सेड ये एक डायरेक्ट स्पीच है। सो सुमित सेड कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमास, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल W, देन क्वेश्चन मार्क एट द एंड एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमास। आप 8 पंचुएशन मार्क्स ढूंढोगे एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। अगर आपको ग्रामर में कोई भी टॉपिक नहीं आता है तो उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी रखी है, यू कैन गो एंड चेक आउट, इवन इन द कमेंट सेक्शन इट इज़ देयर, यू कैन कंप्लीट ऑल योर ग्रामर टॉपिक्स। बिट नंबर 9, मैच एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स डेफिनेशंस इन कॉलम बी। सो कॉलम ए जो है वो आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स है, एंड आपको कॉलम बी उसके मीनिंग्स के साथ उसे मैच करना है। फर्स्ट वन, अनोनिमस, जब आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हो स्पेशली बुक्स लिखते वक्त तब इट इज़ सेड अनोनिमस। नेक्स्ट, कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ राइटिंग गुड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट, गैरेज इज अ प्लेस वेर यू कीप योर कार्स। नेक्स्ट, हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। नेक्स्ट, टीटोटॉलर, कोई इंसान जो अल्कोहल कभी नहीं पीता उसे हम कहते हैं टीटोटॉलर। फीस्ट इज अ लार्ज मील ऑन अ डे ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है, तो मुझे मीनिंग्स मालूम थे तो मैंने मैच कर दिए, तो उसी तरह जब आप इसके मीनिंग्स याद करोगे तब आपके लिए भी ये ईजी हो जाएगा। बिट नंबर 10, फिल इन एनी 4 ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। सो यहाँ पर बॉक्स में बहुत सारे इडियम्स दिए गए हैं, सो यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द करेक्ट इडियम। सो ईच ब्लैंक कैरीज 1 मार्क, सो टोटल ऑफ 4 मार्क्स। फर्स्ट वन, finally our team lost dash and I was disappointed. So finally our team lost by a whisker. Next, a politician needs a thick skin. Next, there is dash in the behavior of the culprit after his release from the prison. There is a sea change in the behavior of the culprit. Let me explain the proceedings in a nutshell. Rahul dash after a lengthy discussion among the members. So Rahul got the nod. So get the nod will change to got the nod after a lengthy discussion. She was prepared to dash for the shoplifting, though it had been her sister's idea. So she was prepared to take the rap. Okay. Bit number 11, make 4 meaningful sentences from the verb pattern given below. An example is given as a model. So verb patterns जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर I wrote this story. So you have to make similar 4 more sentences. So you could write pollution poisons the air. You must wash clothes. Harini lit the lamp. Gautami rang the bell. Fatima closed the door. Elizabeth sang a song. So I'm using only objects. Till explanation, the link is provided in the description box below. Go check it out. So you'll get 4 marks if you make 4 sentences. And 4 sentences must not include this sentence. The mistake students do is that they add up this sentence and then they consider it as 4, but you should make separate 4 sentences, okay, with the same verb pattern. Bit number 12, fill in any 8 blanks of the given blank form based on the information furnished below. So आपको ये पूरी information पढ़नी होगी and then आपको एक form fill up करना होगा. At least 8 things you have to fill in the blank form, then you will get 4 marks. Each blank carries half mark. So you are S. Srinivas staying at Vidyanagar, Adilabad. You want to purchase some books from assorted bookstore Hanumakonda. Your account number is so and so. Apply for a demand draft 3,600 rupees today in favor of the bookstore payable at the SBI Hanumakonda main branch. The exchange to be paid is rupees 50. Okay, so can you see this DD form, that is demand draft form? You can see numbers are given over here. So आपको एग्जाम में भी ऐसे numbers का एक फॉर्म दे देगा. तो आपको आंसर स्क्रिप्ट में बिट नंबर डालना है, बिट नंबर 12 एंड देन 1 to 8 you need to answer. So first one यहाँ पर है ब्रांच. ब्रांच क्या है? सेकेंड इज डेट.
डेट अगर क्वेश्चन में ना दी जाए तो आप ओन से लिख सकते हो। सो इसी तरह आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं। एंड फिलिंग इन फॉर्म्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैंने बना के रखा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ करिकुलम वाइटे इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। सो ये एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जिसके ऊपर आपको CV बनाना है और जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब जिस तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है उसी तरह का CV होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टीचर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक टीचर का CV बनाना होगा अपने नाम अपने एड्रेस के साथ। एंड यू हैव टू फिल आउट योर एजुकेशनल डिटेल्स के आपके रेफरेंसेस क्या क्या है, कोई आपको है इस पोस्ट के लिए रेफर करने के लिए, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू डू। अब स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि वो इस एडवर्टाइजमेंट को ही कॉपी कर देते हैं आंसर शीट में, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एडवर्टाइजमेंट किसी जगह पर जॉब अप्लाई करने के लिए है तो आपको CV बनाना है, आपका एप्लीकेशन बनाना है विद अ कवर लेटर। अब कवर लेटर मोस्ट ऑफ द टीचर्स विल से दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आप रियल लाइफ में जब कहीं पर भी जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हो तो कवर लेटर देना ज़रूरी होता है जिसमें आप अपनी क्वालिटीज़ को भी एक्सप्लेन करते हो। सो दिस कैरीज 4 मार्क्स। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो है जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ओके, बिट नंबर 14 ये है लेटर राइटिंग। एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। फर्स्ट वन इज अ फॉर्मल लेटर। यू वुड लाइक टू नो द प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो इफ यू लॉस्ट अ लाइब्रेरी बुक। राइट एन इंक्वायरी लेटर टू द लाइब्रेरियन रिक्वेस्टिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। सो ये आप लिख सकते हो, या फिर you can write a letter to your friend telling him or her about the new college you joined recently. So friend को लेटर इनफॉर्मल होता है तो उसका अलग फॉर्मेट है, लाइब्रेरियन को लेटर लिखना है, इंक्वायरी लेटर दैट इज़ अ फॉर्मल लेटर। सो दोनों में से एक लिखोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स, एड अ सूटेबल टाइटल। अब ये सबसे ईजी बिट है, पूछो क्यों? बिकॉज इस बिट को सिर्फ आपको पढ़ना है एंड ओन वर्ड्स में बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये ब्रेन के बारे में है कि ब्रेन के 3 डिविजन्स होते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो उसके बारे में है, फिर उनके फंक्शंस के बारे में है। सो आप एक सिंपल सा माइंड मैप बना सकते हो। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। द टॉपिक इज़ नोट मेकिंग। ओके, एंड इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मार्क द स्ट्रेस फॉर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस मार्क करना है। स्ट्रेस में किसी भी वर्ड में कहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको स्ट्रेस मार्क करना होता है। स्ट्रेस मार्क कैरीज हाफ मार्क एंड टोटल ऑफ 4 मार्क्स। तो लेट मी शो यू दिस। सो एज यू कैन सी मैंने रेड पेन से मार्क किया है। यहाँ पर डिले के बीच में DE के बाद स्ट्रेस आता है, देन बायोग्राफी में BI के बाद, कैरी में वर्ड से पहले, इकोनॉमिक में इको के बाद स्ट्रेस आता है, 60 में वर्ड से पहले स्ट्रेस आता है, नेचर में बिफोर N, एंड होटल में आफ्टर HO, विक्ट्री में बिफोर द वर्ड, एंड एप्लीकेशन में आफ्टर एप्ली, एंड जेलीफिश में बिफोर द वर्ड। सो इसके ऊपर वीडियो जो है वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक आउट। नेक्स्ट बिट नंबर 17, इमेजिन यू गॉट द फर्स्ट रैंक इन द इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर। योर क्लोज फ्रेंड केम टू कंग्रेचुलेट यू। How do you share your experience with him? Write a dialogue between you and your friend. ये आप लिख सकते हो, या फिर build a dialogue between a customer and a salesman who has sold a defective apparel. So यहाँ पर भी dialogue writing में भी आपको formal informal आराम से मिल जाएगा। First जो है वो informal है because वो friend से बातचीत है। Customer and salesman के बीच में जो conversation होगी वो obviously formal conversation होगी। तो दोनों में से आप एक लिखोगे and you will get 4 marks. So most important dialogue writing की link जो है वो description box में है, you can go and check that out. So in my next video I'll be uploading inter second year प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो कि आपको टीचर को सबमिट करना होता है, जिसके 20 मार्क्स में से 4 मार्क्स होते हैं। ठीक है, बाकी तो 3 आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। एंड अगर आपको हैंडबुक इंटर सेकेंड ईयर के बारे में जानना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।